एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्ते, मैं हूं दीपिका दे और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ एपेक्स न्यूज इंडिया। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अब खबरें आगे। सबसे पहली बात मेघालय से, जहां केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेघालय में एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स के तहत 1246 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, अधिकारी और अन्य हितधारक मौजूद रहे। Northeast, we are working towards that, where hills become platforms for sustainable development. Forests support conservation-led livelihoods. Rivers power possibilities. And young people carry forward both tradition and enterprise. So I compliment the Honorable Chief Minister of Meghalaya and the Government of Meghalaya for anchoring these projects with commitment. Though today's projects are in Meghalaya, their blessings belong to the entire, their blessings and their message belong to the entire Northeast. The challenges before the region are shared challenges. Therefore, every successful project in the Northeastern state becomes a model and encouragement for the others. I thank our development partners for their confidence in Meghalaya and in the future of the Northeast. मेघालय के भोइरोंगभोंग के लुमडाइट क्लब में नॉर्थ ईस्ट भारत के सबसे बड़े ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। कार्यक्रम में मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोलोय भी मौजूद रहे। The packaging yes, I'll put out the yes, that is हो गया। On the container and we have a oil drying system which also has energy generating boiler that at the very outset I would like to thank our respected Union Finance Minister for taking the time, taking the trouble to come all the way to inaugurate this particular processing unit. And the reason I say this is because as Union Finance Minister, Madam has huge responsibilities. And many states at any given time would want her to visit their states. But she made it a point that while there is going to be a massive program
of the Chief Ministers of Northeast today, she made it a point that she would want to be part of this inaugural program. And the reason why she does it, in the little time that I have come to know her, is because she believes in the small things that make a difference in people's lives. While as the finance minister of the country, the big decisions are very critical. But the human side of her realizes the importance of these small things that make that little difference in our farmers and in our people's lives, which for us looks very small, but for every farmer, it is a game-changing development that has taken place. And to be able to recognize that. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि असम और मेघालय के बीच बचे हुए अंतर्राज्यीय सीमा विवादों पर चर्चा के लिए असम तैयार है। उन्होंने कहा कि ये एक संवेदनशील मुद्दा है और इसे सावधानी के साथ सुलझाया जाना चाहिए। Border talk, when this second phase will begin? I think we are discussing. Recently, we have settled, even if it is temporary, we have settled a dispute in Karbi Anglong sector, and Assam is willing to discuss further. But these are very, very sensitive issues. We are going ahead cautiously. Now the settled area where we have settled border delimitation work is going on. Let us finish that first phase. But when is it likely? No, I think now Survey of India is doing their job as per the agreed principle in 6 sectors. So once that sectors are finished, Survey of India does their line, we both states laid down our borders amicably, then I think the last phases can be taken up for discussion. शिलोंग में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं से मिलने वाले विकास ऋणों का नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को बड़ा लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि अब 16th फाइनेंस कमीशन के तहत भविष्य की विकास योजनाओं और ऋण वितरण को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। I think it is not about demanding, it is about the fund which will be available during the 16th Finance Commission period. So, Madam will go back and she will indicate what will be the resource, will be what will be the quantum will be available for us during the 16th Finance Commission period. And then we'll take up individual projects according to own priority. Each state will have their own priority and we'll do according to that. Sir, last question. हिमंत बिश्व शर्मा ने स्पष्ट किया कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बीच चल रही बातचीत अधिक धन की मांग को लेकर नहीं है, बल्कि 16th फाइनेंस कमीशन के दौरान उपलब्ध संसाधनों को समझने के लिए है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इन चर्चाओं की समीक्षा करेंगी। Yes, Union Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman presided a very important meeting today that is about externally aided project for the Northeast state. Each and every Northeast state has been benefited from the development loan provided by multilateral agencies like World Bank, ADB, JICA, AIB, NDB over the period. So now 15th Finance Commission has completed its term. Now it is a period which will be governed by 16th Finance Commission. So we were discussing about the quantum of development loan which will be available to each and every state. What will be the what will be the projects? What will be the priority? So over next, even tomorrow, our officers will sit down and discuss. Department of Economic Affairs will be here. The development partners will be here. And I think this is a very, very important move by Union Finance Minister to come down to Shillong, discuss with us about external aided project.
We all are very much thankful to her. Sir, from Assam government side, यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। Welcome to Greenhaven, Shillong. Hidden among Meghalaya's misty hills, Greenhaven, Shillong invites you to slow down and reconnect. Indulge in luxurious comfort, stunning views, heartfelt hospitality, and the serenity of nature. Discover a stay that's more than a getaway. It's an experience, where every stay feels like coming home. किचन में चीजें जितनी भी प्रेडिक्टेबल हो, फॉर्च्यून सोया बड़ी से आपको कुछ नया ही मिलेगा। फॉर्च्यून सोया बड़ी, बनाओ कुछ हटके। आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं बाकी खबरों के साथ। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर। करीब 5 दिन तक नो मैंस लैंड में फेज 1 परिवार को विदेश के बांग्लादेश के सीमा अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया है। पति पत्नी और 2 छोटे बच्चों वाले ये परिवार कठिन परिस्थितियों में जीरो लाइन क्षेत्र में रहने को मजबूर थे। ओडिशा से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। दिल्ली की एक महिला जो उड़ीसा के कंधामहल जिले में एक एनजीओ के साथ काम करती है ने आरोप लगाया है कि बच्चा चोरी की अफवाह के आधार पर उन्हें भीड़ ने निशाना बनाया, पीटा और अपमानित किया। घटना ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फेलोशिप चल रहा है, 1 साल का होता है, तो हमारा ग्राम विकास के साथ प्लेसमेंट हुआ है, तो हम लोग इसका दारिंगबाड़ी में हुआ, मेरा काला आंडी में हुआ है, हमारे और भी फेलोज हैं। तो मैं इसके यहाँ पे एक्सपोजर विजिट के लिए गई थी, तो हम वापस आ रहे थे गूगल मैप के थ्रू, क्योंकि हम भी इधर नए हैं, इधर गूगल मैप के थ्रू आ रहे थे। तो हम जा रहे थे आगे एक स्टॉप, मतलब आगे बहुत रास्ता खराब था, पानी था, तो एक भैया उधर से आ रहे थे, बोले थे मैं लोकल हूँ। उनसे पूछा तो भैया ने बोला कि आगे रास्ता खराब है, आगे मत जाओ। तो फिर हम लोग वापस आ रहे थे, जब आ रहे थे तो उन्होंने हमारा चाबी एकदम से स्कूटी से निकाल ली। फिर उन्होंने पूछा आईडी कार्ड, तो मेरे पास जो आईडी कार्ड था, मतलब जो आईडी हमें मिलता है वो दिखाया। उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि आईडी कार्ड दिखाओ। आईडी कार्ड पता नहीं, हम कार्ड लेके घूमते हैं तो कार्ड ही दिखाते हैं। जब हम बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि वो भैया थोड़े नशे में थे और बहुत सारे लोग आ गए। तो ये स्कूटी चालू किया और हम चले गए। जब आगे आ गए बहुत सारे लोग हमें रोकने लग गए, तो हमें बहुत डर लग गया, क्योंकि हम इधर पहले हैं लोग सब ऐसे, तो क्योंकि लोग सब समझ नहीं रहे थे। तो हम जब आगे हम चले जा रहे थे, 2 बार हमारा स्कूटी फिसला, फिर भी किसी तरीके से उठ के हम फिर आगे आए। जब हम यहाँ इधर आए खेत के पास, इधर बहुत बुरी तरीके से स्कूटी हमारे खेत में गिर गया। फिर लोग सब आए, तो ये हम बोले कि चल ताकि हम पुलिस की हेल्प कर सके, ले सके। तो ये भाग रहा था, मैं भी भाग रही थी, पर मैं रुक गई क्योंकि कुछ लोग आ गए और बोल रहे थे बताओ। तो मैं उनको बताने लग गई कि हम कौन है, क्या करते हैं। तब तक कुछ और लोग आए पीछे से बाइक रोक के और मुझे बहुत मारा, मेरे बाल खींचने लगे, मेरे कपड़े फाड़ दिए,
कोई अजीब तरीके से मेरे को छू रहा था, कोई मार रहा था मेरे को बहुत गंदी तरीके से। कुछ लोग बचा भी रहे थे मुझे। फिर उसके बाद किसी तरीके से मुझे बचा के गाड़ी में बिठाया, फिर गाड़ी लेके पुलिस स्टेशन आए, फिर मुझे यहाँ लेके आए। अभी भी लोग तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे मेरे को वापस मेरी लोकेशन पे भेज दो प्लीज। लोग तो हम सच में कोई बच्चा कुछ नहीं लेने आए हैं। आप चाहे तो हमारे लोकेशन पे जाके लोगों से पूछो, आप चाहे हमारा सब कुछ देख लो, लोकेशन में चेक कर लो कि क्या है क्या नहीं। हम कोई बच्चा चोरी क्यों करेंगे? हम बल्कि सोशल वर्क करने आए। ग्राम विकास आप सर्च कर दो, NGO है, सोशल वर्क करता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। हम क्यों बच्चा चोरी करेंगे? तो उस लोगों ने बच्चा चोरी कर ले गया है, उसने आपको मारा? पता नहीं क्यों मार रहे, हमें कुछ नहीं बताया, बस मारे जा रहे। बच्चा चोरी ही नहीं किया हमने। मणिपुर में कुकी इनपी मणिपुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपकर 7 मांगों की चार्टर पेश किया है। संगठन ने हैंगलेप में हुई मौत की न्यायिक जांच, पीड़ितों को मुआवजा, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और शीघ्र राजनीतिक समाधान की मांग की है। महाराष्ट्र के भिवांडी में संदिग्ध फूड पॉइजनिंग की घटना में लगभग 80 लोग प्रभावित हुए हैं। पीड़ितों में उल्टी, दस्त, पेट दर्द और सिर दर्द जैसे लक्षण दिखाए गए हैं। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ये आपल्याकडे काल रात्री से आलेले मेघालय में 12वीं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। जोवाई और शिलोंग में आयोजित कार्यक्रमों में योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर जोर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री वायलट मिकेशेला ने युवाओं से स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की अपील की और नए 50 बेडेड आयुष हॉस्पिटल तथा आयुष मेडिकल कॉलेज की योजनाओं की जानकारी दी। खबरों में अभी के लिए इतना ही। ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। थैंक यू। Apex News India Northeast।